सॉल्यूशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कल पढ़ा, पहले लेक्चर में पढ़ा कि मोलरिटी पार्ट पर मिलियन और मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी है क्या बेसिकली? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution. It is represented by the letter capital M. Mathematically, molarity equal to the number of moles of solute divided by volume of solution in liter. अगर हम इस वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेंगे तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000. फॉर एग्जाम्पल 2.4 gram of sodium hydroxide dissolved in 100 centimeter cube of the volumetric flask. You have to calculate molarity. हमारे first thing we have to calculate number of moles. N equal to mass of the solute in gram divided by molar mass of sodium hydroxide 40 and number of mole is 0.061. Now volume is given, that is 100 centimeter cube in. Now molarity equal to number of moles of solute divided by volume in liter, milliliter multiplied by 1000. Therefore molarity of M sodium hydroxide equal to 0.61 M. Next is molarity. What is molarity? It is the number of moles of solute in 1 liter of solvent. मोलरिटी में हम सॉल्यूशन लेते हैं, मोलरिटी में हम सॉल्वेंट लेते हैं। तो कैसे? 1 not in 1 liter, in 1000 gram of solvent. It is represented by small letter m. M equal to number of mole of solute divided by volume in kg. जब इस वॉल्यूम को हम ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000. क्वेश्चन है 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये इसका मोलर मास है। इन इसमें डिसॉल्व्ड है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब हमने क्या करना है? इसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे निकालनी है वो क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज N ऑफ इसका एसिटिक एसिड का 2.5 ग्राम डिवाइड बाय 60, तो कितना आएगा? 0.041. अब जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकल गए तो therefore molarity equal to number of moles of solute divided by volume, mass is 75 gram multiplied by 1000. तो हमारे पास m क्या आएगा? 0.55 m. तो मोलरिटी किसकी? एसिटिक एसिड की कितनी आ गई? 0.55 m. थर्ड जो हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट है दैट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन है क्या बेसिकली? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. कि एक कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन में कितने हैं, उसको क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन बोला जाता है. इस मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x से और कंपोनेंट को इसके लोअर सबस्क्रिप्ट राइट में लिखा जाता है. सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A लिखना है तो हमें सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है? A लिखना है. तो
For example, I take the two component, therefore mole fraction x is equal to total number of component 1 divided by total component, or the total number of mole fraction Na plus Nb is always equal to 1. For example, ethyl glycol is dissolved in 20% of solution, 20% solution of the water. We have to calculate their mole fraction. How we can calculate the mole fraction? First we have to calculate number of moles. It means that when we express the volume in percentage, it means 20 gram of ethyl alcohol present in 80 ml. 20 ml of ethyl glycol is present in 80 ml of the water. Now, number of moles Na equal to 20 divided by their molecular mass equal to 0.32. Similarly, for water, 80 divided by 18 is the mole, it is equal to 4.4. Now, mole fraction of Xa, that is ethyl glycol, equal to 0.68. Similarly, this is Xb, that is water, and it is equal to 0.932. Now, total number of component Xa plus Xb equal to 0.068 plus 0.932 equal to 1. Last concentration unit है normality. Normality क्या है? It is the number of gram equivalent of solute in 1 liter of the solution. Unit क्या है इसका? It is gram equivalent per liter. Mathematically कैसे एक्सप्रेस करते हैं? N equal to number of gram equivalent of solute डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर. जब हम इस वॉल्यूम को ml में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है थाउजेंड से. क्वेश्चन देख लेते हैं. A commercially available sample is 15% H2SO4 by weight. Calculate molarity, normality and molality of the sample. Now, पहली चीज जो हमें यहाँ से निकालनी है, 15% का मतलब क्या हो गया? 15 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 85 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर है. अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? N सल्फ्यूरिक एसिड का 15 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज N. वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा? मास डिवाइड बाय डेंसिटी. मास कितना है टोटल? 100 डिवाइड बाय 1:1 सॉल्यूशन का. दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. कितना है? मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी. 100 डिवाइड बाय 1.1 डेंसिटी इज गिवन है, तो हमारे पास 9.9 वॉल्यूम आ गया. नाउ पहली चीज हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी में पहली चीज नंबर ऑफ मोल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो हमारे पास 1.68 जो है वो मोलैरिटी है. दूसरी चीज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी में हमने सबसे पहले क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट. कहां से निकलेगा? इक्विवेलेंट मास से. इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय एसिडिटी. एसिड है तो बेसिसिटी, बेस होगा तो एसिडिटी. ये एसिड है तो डिवाइड बाय 2. अब 98 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 49 इक्विवेलेंट मास आ गया. यहां से हम ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के निकालेंगे, तो क्या निकलेगा हमारे पास? मास ऑफ H2SO4 that is 15 gram divided by equivalent of 49,
तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिले 15 डिवाइड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय देयर वॉल्यूम। नाउ यहाँ से कितना निकला 3.36 n। इसी तरह से मोलैरिटी में हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो कहाँ से निकलेगा 1000 माइनस 15 तो 85 क्या आ गया वेट ऑफ द वाटर। यहाँ से n जो हमारे पास दिया है 15 डिवाइड बाय 98। अब m क्या है 15 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 85 इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। तो हमारे पास जो मोलैरिटी निकली वो 1.98। यहाँ से तीन चीजें दिख रही हैं। पहली चीज जो हमारे पास मोलैरिटी है दैट चेंजेस विद टेंपरेचर, नॉर्मैलिटी चेंजेस विद टेंपरेचर बट मोलैरिटी डज नॉट चेंजेस विद टेंपरेचर। रीजन ये है इसका कि जब मोलैरिटी को हम देखते हैं इट डिपेंड अपॉन मास of the solvent and mass doesn't changes with the temperature, therefore it is the constant, but normality and molarity changes. Second thing, if we talk about the concentration, which one of the solution 1.68 m, 3.36 n and 1.98, always keep in mind molar solution have higher concentration then molar then normal solution. It means when we talk about the concentration, molar have high concentration than molar and molar have high concentration than normal. The reason is that we can express them in terms of volume and volume the volume have more number of